OGDT measures the body's ability to use the glucose. That is the body's main source of what? Energy. And OGDT can be used to diagnose impaired glucose tolerance or diabetes. Later we will tell about what is impaired glucose tolerance and how to know it is impaired glucose tolerance or diabetes. Used to test for diabetes, insulin resistance, impaired beta cell function and acromegaly. What is acromegaly? Any idea about acromegaly? Anyone? Anyone? Growth hormone. And what are the effects of it? Released in excessive amounts And effects of it? bones are ग्रोथ हार्मोन होता है तो ग्रोथ होगा ना उसका. abnormal growth and therefore Yes, good. And OGD is the most commonly done to check for the diabetes that occurs with pregnancy. Pregnancy is a diabetic condition. That means there are increased chances of diabetes when the patient is pregnant. We call it gestational diabetes. Okay, clear with it? All the pregnant women, 2 times. At first antenatal visit and second time at 24 to 28 weeks of pregnancy. Doctor may also recommend that someone have this test if they are having the symptoms of impaired glucose tolerance or diabetes or had gestational diabetes during a previous pregnancy. Preparation. How you prepare the patient? We have to test. So we have to prepare the patient. Eat a balanced diet for 3 days with 150 grams of simple carbohydrate. Simple carbohydrates like potatoes, breads, white rice. It can be fruits, cereals, grains, etc., etc. Then we have to ask to stop the patient. We have to ask the patient to stop drinking, smoking, or excessive exercise. At least 8 hours before the first sample is taken. We have to take 6 samples. I will tell it later when to take, but we have to take 6 samples. So she or he has to stop the strenuous works. Tell the doctor about the all prescribed and non-prescribed medicines you are taking, like diuretic, corticosteroid, estrogens, phenytoin. Doc may be instruct to stop the certain medication before the test. कभी कभी होता है ना, हम लोग को बुखार वगैरह होता है या फिर कोई मेडिकेशन हम ले रहे हैं या फिर मतलब डॉक्टर से पूछ के या फिर नहीं पूछ के भी ले लेते हैं फार्मेसी से जाके कुछ भी. हाँ, तो सब बताना है डॉक्टर को कि ये मेडिकेशन ले रहे हैं और डॉक्टर आपको बताएगा कि ये सब ले सकते हैं कि नहीं ड्यूरिंग द टेस्ट 3 days. द ग्लूकोज टॉलरेंस डायग्नोसिस टेस्ट में टेक अप टू 3 to 4 hours. वो 3 से 4 घंटे का वक्त लेगा. क्यों लेगा वो बाद में हम आएंगे. Since the activity can interfere with the test results, you will be asked to sit quietly during the entire test. Do not eat during the test. You may drink a little bit of water during this time. थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं. कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि वो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव दे सकते हैं ना. हमारा मकसद ये है कि टेस्ट ही नहीं करना है, सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, उसको अच्छे से करना है. प्रिपेयर करना है पेशेंट को, क्या क्या इंस्ट्रक्शन देने को पहले से बोलना है. 30 minutes before and during the test, you are required to remain at the collection center until the procedure is completed. Bring some reading material or the other activity to pass the time. If feel unwell, report to the doctor or the nurse or whoever present at the center. If there is a history of acute illness like fever, diarrhea or anything like that, you have to inform. Due to the nature of the test is generally done in the morning. Before drinking the glucose, please inform the collection staff if patient have any allergy towards the glucose. अगर ग्लूकोज के अगेंस्ट में कुछ एलर्जी है तो उनको बोलना पड़ेगा पहले से, तो नहीं देगा, दूसरा टेस्ट के लिए बोलेगा. उनको 2 हफ्ते के लिए हेल्दी रहना पड़ेगा. मीन्स टेस्ट आज है तो 2 हफ्ते पहले से उसको हेल्दी रहना पड़ेगा. ठीक है ना. उनको पूछना है कि आपको 2 हफ्ते से कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आप ठीक ठाक तो हो ना. और क्योंकि हम 6 सैंपल लेने वाले हैं इसलिए उसको 2-3 घंटा सेंटर पे भी रहना पड़ सकता है ना. वो हम पहले से उनको बता देंगे क्योंकि वो उससे टाइम अपना लेके आएंगे. और सुबह क्यों करते हैं, सुबह क्यों टेस्टिंग करते हैं? क्योंकि हम एक फास्टिंग स्टेट में लेते हैं ना. 8 घंटा कोई खाली पेट कैसे रहेगा? उसको रात को बोलेंगे, वो एक टाइम करेगा ना, 8 घंटा खाली पेट आएगा,
एक फास्टिंग पे सैंपल और बाकी 5 लेंगे आधे घंटे बाद आफ्टर गिविंग द मिक्सचर। आई विल टेल व्हाट आर द मिक्सचर्स, व्हाट इज द मिक्सचर, बट 6 सैंपल लेंगे, उसके लिए 2 से 3 घंटे लगेगा। नाउ द प्रोसीड्यूर of OGTT. We already know he or she has to have overnight fasting of minimum 8 hours. A blood and urine sample is collected in the fasting state. Fasting state में blood sample एक लेना है, urine sample एक लेना है। जब वो 8 घंटे का रेस्ट पे हो, glucose load is 75 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस ग्लूकोज। व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू मीन बाय एनहाइड्रस ग्लूकोज? क्या है एनहाइड्रस ग्लूकोज? क्या है हाइड्रस, क्या है और एनहाइड्रस क्या है? क्या है ये? कौन से तरह का ग्लूकोज है एनहाइड्रस ग्लूकोज? हाँ, पाउडर तो होता है ना। क्या इसमें खाद है? ड्राई का मतलब विदाउट वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स। विदाउट वाटर मॉलिक्यूल ग्लूकोज इज कॉल्ड एनहाइड्रस ग्लूकोज। वी हैव टू मिक्स इट ऑन वाटर ऑफ 300 ml, ठीक है ना। मिक्स करना है 75 ग्राम का एनहाइड्रस ग्लूकोज लेंगे, उसको 300 ml ऑफ वाटर में मिक्स करना है। बच्चे लोग के लिए तो इतना नहीं देंगे हम ना, उनका तो वेट कम होगा, तो उनको कैसे देंगे? फिक्स डोज ऑफ 1.75 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ए फुल एडल्ट डोज शुड नॉट बी गिवन टू ए पर्सन weighing less than 43 kg or exaggerated glucose may produce a false positive. Asked to drink slowly in a 5 minutes. Flavoring decreases vomiting. What is flavoring? जैसे क्या होगा फ्लेवरिंग करने से? क्या फायदा है मुझे? क्यों करना है? ठीक है, कोई। We can mix a little bit of ice or little bit of lemon, not orange ना, little bit of lemon to flavor the drink. आपको क्या लगता है 300 ml का मिक्सचर एक आदमी एक साथ खा सकता है क्या? वो दिक्कत वाला बात हो जाएगा ना, वोमिटिंग भी हो सकता है। तो हम थोड़ा फ्लेवर ऐड करेंगे, लाइक आइस क्यूब और थोड़ा सा लेमन, ठीक है ना। नहीं दे भी तो भी दिक्कत नहीं है, अगर पेशेंट खा सकता है तो। और वो जो मिक्सचर देंगे ना, वो 5 मिनट के अंदर खाना है उसको, नॉट ग्रेटर देन 5 मिनट्स। Sample collection. Fasting blood and urine sample is collected before giving the glucose load. एक सैंपल लेना है फास्टिंग स्टेट में ब्लड का, और दूसरा लेना है यूरिन का। यूरिन में क्या यूजुअली ग्लूकोज होता है कि नहीं? नहीं होता है कि होता है? थोड़ा सा भी होता है क्या? यूजुअली नहीं होता। ऑलमोस्ट 99% देयर विल बी नो ग्लूकोज इन यूरिन। ब्लड में हो सकता है क्या ग्लूकोज? होगा क्या? श्योर? थोड़ा नहीं, अच्छा ही होगा भाई, नहीं तो नहीं कौन। उनको आधे घंटे बाद आप पहले फास्टिंग स्टेट में सैंपल लेंगे यूरिन का और ब्लड का। देन यू हैव टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। देन यू हैव टू टेक ब्लड एंड यूरिन सैंपल एवरी हाफ एन आवर फॉर 5 टाइम्स, ठीक है ना। आधा घंटे बाद लेंगे तो कितना वक्त लगेगा? 2.5 आवर तो लगेगा ना, तो 3 घंटे की होगा कि नहीं? कौन सा सैंपल लेंगे? ब्लड एंड यूरिन का सैंपल, ठीक है। लिखो, इज considered one of the most effective way to determine the case of GDM. One of the most, not the most ना, most effective way नहीं है। कितना लेंदी प्रोसेस है, कितना कुछ करना पड़ता है। 6 सैंपल, एक बार यूरिन का, एक बार ब्लड का, 6 बार ब्लड लो। पेशेंट खुश होगा क्या आपसे? नहीं होगा ना, आएगा ही नहीं। दूसरे जन को भी बोलेगा नहीं आना, ये इस डॉक्टर के पास नहीं जाना, इस सेंटर में नहीं जाना है, कोई और दो। मैनेजिंग शुगर लेवल डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ बेबी ग्रोइंग लार्जर फॉर द डेट्स। अगर हमको पहले से ही पता चल गया कि उसका शुगर होने वाला है, मतलब गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस होने वाला है, तो हम उसको इंटरवेन कर सकते हैं ना। नहीं हुआ तो ठीक है, नॉर्मली होगा। अगर हो गया GDM तो हमको उसको इंटरवेन करना है, उस ग्लूकोज को कंट्रोल में लाना है। मैनेजिंग शुगर लेवल में डिक्रीज द रिस्क ऑफ इंटरवेंशन इन लेबर और बर्थ। अगर बच्चा बड़ा हो गया, 4-5 kg का हो गया, तो उसका वेजिनल डिलीवरी में दिक्कत आएगा कि नहीं? आएगा ऑब्वियसली। तो तब इंटरवेंशन करना पड़ता है, वो हम सीखेंगे अच्छे से, OBG में सीखेंगे, ठीक है ना। अभी इतना ही मालूम रखो कि इंटरवेंशन लग सकता है, जैसे कि सी सेक्शन कर सकते हैं, सोनोग्राफी करना पड़ सकता है, कुछ भी बहुत सारा प्रोसीड्यूर है इंटरवेंशन। क्या दिख रहा है इधर आपको? Any ideas, boys and girls? ये नॉर्मल GTD का
ग्राफ है, नॉर्मल पेशेंट का है। देखो फास्टिंग स्टेट में कितना आया 75, 75 इज नॉर्मल और नॉट नॉर्मल। शुगर में यूरिन है कि नहीं, नहीं है, देयर इज नो शुगर इन द यूरिन, नील है, ठीक है। हाफ एन आवर के बाद देखो क्या हुआ, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ब्लड शुगर, व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्लूकोज वी गिवन टू हर। 1 आवर के बाद क्या हुआ, फिर से इंक्रीज, क्यों? अब भी एब्जॉर्ब हो रहा है। आफ्टर 1.5 hour body is utilizing the glucose and patient is normal, means insulin is working properly, so there is a dip 100, then 2 hour there is 65, it crossed the value of 70. After 70 pancreas stop the production of insulin, so that patient हाइपोग्लाइसेमिया में नहीं जाए उसके लिए कट ऑफ कर देते हैं, इंसुलिन बंद करना, ठीक है ना। तो अब 65 जा रहा है, इधर तो नीली है, यूरिन में तो नॉर्मल नीली है, 65 में जा रहा है, तो बॉडी को क्या लग रहा है ये हाइपोग्लाइसेमिया जा सकता है, तो बॉडी तो काउंटर करेगा ना, बॉडी विल काउंटर इट आउट, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू कर देगा स्केलेटल मसल से या फिर लिवर से, तो देयर इज ए लिटिल बिट ऑफ इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज। 76 कट ऑफ मार्क क्रॉस हो गया, मैं बैलेंस कर रहे हैं एक नॉर्मल पेशेंट में। मगर इधर क्या हो रहा है, ये नॉर्मल पेशेंट नहीं है, सेवरी डायबिटिक कर्व है, वो कर्व ड्रॉ करना है खाते में, एक बेसिक से ड्रॉ कर लो 100, ठीक से बोलो भाई। 110 में तो आईजीटी में चला जाएगा, वो आएगा बाद में। अच्छा ठीक है, इधर फास्टिंग भी पहले से ज़्यादा है, उसके बाद क्या दिख रहा है? हाँ, क्योंकि ऑलरेडी हम वी आर गिविंग ना, उसके बाद एक और बाद और भी हो रहा है, यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, क्यों यूटिलाइजेशन है? उससे रिसेप्टर सेंसिटिव नहीं है, यार है भी तो कम है, प्रॉपर्ली वर्क नहीं हो रहा है। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद और ज़्यादा है, उससे 2 घंटे बाद थोड़ा खर्चा हुआ, थोड़ा मैनेज हुआ, बॉडी ने किया। 200 के बाद भी 330 है, मतलब कमा नहीं है। और दूसरा चीज़ें देखो कि यूरिन शुगर भी बढ़ रहा है, इट शुड बी नील, बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, बॉडी उसको निकालना चाह रहा है, नहीं तो और बढ़ेगा ना, उसके लिए भी डीप आ रहा है। यूरिन शुगर हम कैसे मेजर कर सकते हैं? बाय व्हिच प्रोसीड्यूर वी कैन मेजर द यूरिन शुगर? डिस्ट्रिक्ट से कर सकते हैं क्या? स्पॉटिंग में दिया था ना एक, हाँ कर सकते हैं, वो तो मिला के, वो तो दूसरा ठीक, ये भी ड्रॉ कर लो। क्लासिकल सिम्टम्स याद है ना, क्या क्या है क्लासिकल सिम्टम्स? पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड वेट लॉस। वेट लॉस है कि नहीं क्लासिकल सिम्टम्स? पॉलीफिजिया क्यों नहीं क्लासिकल सिम्टम्स है, वो बोलो। पॉलीफिजिया भी होता है, सिम्टम है क्यों, बट क्लासिकल सिम्टम क्यों नहीं है? नो आइडिया, एनीवन? कॉमन क्या है पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड वेट लॉस में कॉमन क्या है? लिखो, लिखते लिखते सुनो ना, क्या है इनमें कॉमन? वेट लॉस, इसको मेजर कर सकते हैं क्या? वेट लॉस को, आपका जो वजन घटा है उसको मेजर कर सकते हैं क्या? पॉलीयूरिया को मेजर कर सकते हैं क्या? पॉलीडिप्सिया को मेजर कर सकते हैं क्या, कितना पानी पी रहे हैं? पॉलीफेजिया को मेजर कर सकते हैं क्या? रीजन इज देयर, इसको हम मेजर नहीं कर सकते कि इसको कितना भूख लग रहा है, वो कैसे मेजर कर मापेंगे, कैसे मापेंगे? हम नहीं कर सकते, इसलिए वो सिम्टम है मगर क्लासिकल सिम्टम नहीं, क्योंकि बाकी तीनों को हम तोल सकते हैं, कितना पानी पिया, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, इतना पी लेता है, कितना यूरिन आउटपुट हुआ, कैथेटर लगा के हम कर सकते हैं ना, कितना वेट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बस इतना ही। नौशा हो सकता है क्योंकि उतना पानी पी रहा है 300 ml, इसलिए हम फ्लेवरिंग भी करते हैं। फ्लेवरिंग किससे करते हैं? लेमन, लिटिल बिट ऑफ लेमन एंड लिटिल बिट ऑफ आइस। सोडा दे सकते हैं क्या? सोडा, कोक, माउंटेन ड्यू, चॉकलेट, शुगर कुछ दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, नहीं देना है। नहीं तो वो जो हमने इतना मेजर किया 75 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस ग्लूकोज, नॉट ओनली ग्लूकोज, इसका फायदा क्या रहेगा? 3 दिन से पेशेंट को रेडी कर रहे, 2 हफ्ते से बोल रहे कि हेल्दी रहिए, 3 दिन से बोल रहे हैं कि कुछ मेहनत मत कीजिए, इतना खाइए, उसके बाद आप लोग उसको दे रहे इतना इतना, फायदा नहीं है ना, और प्रोसेस भी इतना लेंदी है। तो काउंसलिंग करके रखना है, पहले से पेशेंट को बोलना है क्या क्या होगा। सो इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीड्यूर ना, हेक्टिक प्रोसीड्यूर फॉर एवरीवन, फॉर द डॉक्टर टू, फॉर द स्टाफ, फॉर द पेशेंट्स, ठीक है ना। खत्म है ये क्लासिकल सिम्टम्स, बोला ही अभी।
लिख के रख दो। और सिम्टम्स में पॉलीफिजिया लिख के रखो, और पॉलीफिजिया क्यों नहीं काउंट होता वो भी लिख के रखना है ना, क्योंकि वी कैन नॉट। अभी इधर से पढ़ के जो, अगर हॉस्टल में जाके पढ़ने का जरूरत ही नहीं, सिंपल थिंग्स ना सिखा दूंगा मैं, कैसे डायबिटीज डायग्नोसिस करना है। अभी आएगा मज़ेदार पार्ट, अभी से इंटरेस्टिंग पार्ट। 6 लीटर ऑफ H2 इंटेक पर डे, 6 लीटर कितना ज्यादा है। 2 से 3 लीटर खाने में लोगों का हालत खराब हो जाता है। 6 लीटर। पोलीयूरिया क्यों होता है, ये बोलो, पोलीयूरिया क्यों होता है, पोलीडिप्सिया क्यों होता है? कोई तो रीजन रहेगा ना, ऐसे तो नहीं हो रहा है। देयर इज एक्सेस ग्लूकोज इन द ब्लड शुगर, सो उसको निकालना पड़ेगा कि नहीं बॉडी से। बॉडी तो ट्राई करेगा, कैसे निकालेगा? यूरिन के साथ, इट विल गो आउट विथ यूरिन। अगर यूरिन एक्स्ट्रा जा रहा है तो उसको डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, तो पिएगा कि नहीं पानी? तो तीनों चीजें हमको मालूम है। वेट लॉस क्यों होता है, अभी बोला, व्हाई देयर इज वेट लॉस। पोलियोरिया क्यों है, अभी तो आ रहा है ना, क्योंकि उसको निकालना है मुझे, किडनी को ना, किडनी को तो निकालना है उसको, जितना हो सके। सब तो निकाल नहीं पाएगा, तो निकालेगा, वाटर के साथ जाएगा, तो उसको फिर से डिहाइड्रेशन होगा, उसको फिर से पिएगा, विशियस साइकिल चालू हो जाएगा ना। डायग्नोसिस, क्लासिकल सिम्टम प्लस आर रैंडम ब्लड शुगर ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम। एसिम्प्टोमेटिक भी तो हो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रैंडमली चेक किया मैंने तो अब तक एसिम्प्टोमेटिक में, तो आप SB1C में आ गया। बोलो SB1C क्या खराब क्या, बोलो व्हाट इज SB1C एंड व्हाई इट्स वन ऑफ द बेस्ट। रीजन तो रहेगा ना, ऐसे तो मेरे मर्जी से तो नहीं होगा ना, मैं बोल दे इसको बेस्ट, ये बेस्ट बन गया। क्यों ये बेस्ट क्यों है? बाकी सब भी क्राइटेरिया है, मगर ये की बेस्ट। प्री डायबिटीज की जगह लिखो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। यू हैव टू राइट इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस इन प्लेस ऑफ प्री डायबिटीज। डोंट यूज दिस वर्ड प्री डायबिटीज, यूज इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, IGT। ये चार्ट अभी याद करना है आपको विथ नंबर्स। आपको हर वक्त ये काम पे लगेगा, OPD में भी, IBD में भी, कहीं भी। इससे आप डायग्नोसिस कर पाओगे किसी को SB1C है और टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है कि नहीं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SB1C? ठीक है, ग्लाइकोलाइसिडेट। क्यों करते हैं हम, ये बेस्ट क्यों है, व्हाई इज इट बेस्ट? हाँ यही बोलना है, कैन बी डन इन एनी टाइम, डे और नाइट, विदाउट फास्टिंग और आफ्टर मील। एंड उसके बाद वो बोलना है ना, इट्स गिव ए एवरेज वैल्यू ऑफ 3 मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स बोलते हैं, बट 3 मंथ्स बोलते हैं, ठीक है ना। अगर कंट्रोल तो नहीं हो सकता है ना, ऐसे ही तो बढ़ सकता है। जब ग्रेटर देन 7 होगा तब हमको उसको मेडिकेशन पे प्लस डाइटरी मोटिवेशन पे ले सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन भी तो आ सकते हैं ना, हमने बोला ना गेस्टेशनल डायबिटीज वाले आएंगे, तो कैसे करेंगे उनको टेस्ट, कौन सा गाइडलाइन फॉलो करेंगे इंडिया के सेटअप में। वी आर 140 करोड़ पीपल्स ना, तो सो वी हैव आवर ओन गाइडलाइंस like DeepC guidelines. It's a national guideline followed in India for universal screening of what? GDM means what? ठीक है, pregnancy is a what condition? Diabetogenic condition. So pregnant woman आया आपके पास, a pregnant woman come in the OPD or anywhere for the first time visit. You have to give her 75 gram of oral glucose and check the 2-hour postprandial glucose level. Either it can come positive or negative. Positive means what? Greater than 140. It means she got the GDM. Or if negative, we will tell the patient to come again. When? 24 to 28 weeks of pregnancy. अगर नेगेटिव आया तो, पॉजिटिव आया तो हमने तो डायग्नोसिस कर लिया, उसके GDM है, ठीक है ना। नेगेटिव आया तो उसको बोलेंगे फिर से आओ 24 to 28 weeks ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना। ये सोचो कि ऐसे आ गया कि जब इसका 14 वीक्स चल रहा है, 16 वीक्स चल रहा है, 10 वीक्स चल रहा है, 20 वीक्स चल रहा है, तब एक बार आया, हमने टेस्ट किया, उसमें आ रहा है कि नेगेटिव है, लेस देन 40 है, तो उसको फिर से बुलाएंगे। अगर पॉजिटिव है तो GDM डायग्नोस्ड विल, एंड अगर GDM है तो उसको मैनेजमेंट करेंगे, वो दूसरा बात है, मैनेजमेंट बाद में, आगे डायग्नोसिस करना है ना GDM में। क्या ये 140 से ज्यादा नहीं हो सकता है क्या? 200 हो नहीं सकता क्या? 210, 220, 230 हो सकता है कि नहीं?
अगर 200 से ज़्यादा है तो इस गाइडलाइन के अनुसार, इधर लिखा नहीं है, तो आप यह समझ लेना कि उसको प्रेगनेंसी के वक्त नहीं हुआ है डायबिटीज, वो पहले से ही था, ठीक है ना। शी गॉट द डायबिटीज बिफोर द प्रेगनेंसी इफ द पोस्टपार्टल वैल्यू इज ग्रेटर देन 200, ठीक है ना। क्या दिक्कत होगा अगर पहले से वो डायबिटिक है, क्या दिक्कत हो सकता है? एक तो वह प्रेगनेंसी के बीच में हुआ, एक है पहले से है उसका डायबिटीज, ठीक है ना, उसको मालूम नहीं है, हमने अभी डायग्नोसिस किया है ना, मालूम भी तो नहीं हो सकता है ना। एसिम्प्टोमेटिक था, किसी ने पूछा नहीं, हमने स्क्रीनिंग किया, पता चल गया कि उसके पहले से डायबिटीज है, तो उसको क्या दिक्कत हो सकती है उसमें? अगर पहले से ही डायबिटीज है तो उसका फ्री रेडिकल्स भी है, और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट होने के बाद जब फीटल का ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, व्हेन देयर विल बी ऑर्गेनोजेनेसिस द फ्री रेडिकल्स विल हैम्पर द ऑर्गेनोजेनेसिस एंड देयर विल बी एनोमली टुवर्ड्स द फीटस, ठीक है ना। वो हाथ में ठीक से नहीं होगा, दिमाग ठीक से नहीं होगा ना, अगर पहले से है तो शुगर। मगर इन बिटवीन में हुआ आफ्टर ऑर्गेनोजेनेसिस, जैसे कि जीडीएम, तो ऑर्गेनोजेनेसिस ऑलरेडी हैज हो चुका है ऑर्गेनोजेनेसिस, वो बच्चा बड़ा हो सकता है साइज में 4-5 केजी का, मगर उसका ऑर्गन सब डेवलप हो चुका है, मीन्स कोई ऐसा एनोमली नहीं होगा। अगर पहले से उसका डायबिटीज है तो उसका एनोमली हो सकता है, ठीक है ना। और इस केस में हमको फास्टिंग नहीं चाहिए, वो आया है एसी आया है, हमने एसी ही कर लिया, ठीक है ना, फास्टिंग नहीं चाहिए उसको, उतना नहीं चाहिए, उतना जैसे कि पहले हमने फॉलो किया कि 8 आवर और 10 आवर्स वर्क, ये वो क्यों नहीं करते, इस गाइड में क्यों नहीं करते। अगर आप पेशेंट को बोलोगे कि ये करके आओ, वो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है फ्रॉम विलेज, शी विल नॉट कम अगेन, शी मे नॉट कम अगेन ना, वो लेंथी प्रोसेस है ना, 3 दिन इतना करके खाओ, 3 घंटे लगेगा, 6 बार लेगा सैंपल, कोई डर से नहीं आएगा, तो हम ऐसे ही करते हैं। हमको ऐसा करना चाहिए जो अभी आए अभी कर लो, इसमें तो कर सकते हैं ना, फास्टिंग से नहीं चाहिए। 75 ग्राम दिया अभी मिक्सचर के साथ, थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद हमने टेस्ट किया, टेस्ट में आइदर शी कैन कम नेगेटिव और ग्रेटर देन 140 मीन जीडीएम और ग्रेटर देन 200 ना, हमने तो डायग्नोस कर लिया। अगर नेगेटिव आया तो उसको फिर से बुलाएंगे 24 वीक में, अगर 24 वीक में फिर से आया फिर से वही करेंगे, 75 ग्राम ही देंगे। 140 से ज़्यादा गए तो जीडीएम, लेस देन 140 से गया है तो नॉर्मल है, मोस्ट ऑफ द डायबिटीज नॉर्मल। 200 से ज़्यादा गए तो हम प्री डायबिटीज बोल देंगे ना। अब सिचुएशन ऐसा है, 24 वीक में ही फास्ट आया है, वो पहले आया ही नहीं। कभी होता है ना, कई कई जगह होता है वो पहले आते ही नहीं, 24 वीक में ही आते, लेट आते हैं। तो हम कितने टेस्ट करेंगे? अगर 24 वीक में आएगा तो हम एक तो फास्ट करेंगे, पॉजिटिव निकल गया तो पॉजिटिव है जीडीएम के लिए, नेगेटिव है तो कितने दिन बाद फिर टेस्ट करेंगे, कल ही कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 1 वीक बाद बात करेंगे, 1.5 वीक बाद, कितने वीक बाद करेंगे सेकेंड टाइम के लिए। अगर नेगेटिव निकला तो 2 वीक्स, मिनिमम 2 वीक्स ऑफ गैप। अगर 24 वीक्स में आया तो 26 वीक में करेंगे, समझा कि नहीं? 2 बार तो करना है, पॉजिटिव निकल गए तो निकल गए, नहीं तो नेगेटिव किया नहीं किया तो नेगेटिव नहीं आया तो नेगेटिव आया तो फिर से करेंगे ना। तो 2 वीक्स का गैप लेंगे हम, 26 वीक में करेंगे। 25 में आया तो 27 में करेंगे, 26 में आया तो 27। अब आप और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, 27 में आएगा तो क्या करेंगे? वो तो 29 वीक्स का वो विंडो पीरियड निकल रहा है ना, तो हम एक बार ही कर लेंगे, 28, 27, 28 में एक बार ही कर लेंगे ना, उसको दूसरा नहीं करना है, क्योंकि हमारा तो विंडो निकल रहा है ना इधर। 27 में करेंगे तो 29 में हो जाएगा, 28 में करेंगे तो 30 तक चला जाएगा, उतना नहीं जरूरत है ना। तो हम यूजुअली 27 या 28 में एक ही कर सकते हैं, वो आप ओबीजी में अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है ना। समझ गया? कोई कंफ्यूजन है क्या? फिर से बताओ थोड़ा। GDM will not be developed after 28 weeks. यूजुअली नॉट। और ये गाइडलाइन पूरा होता है उसके बाद भी हम शुगर टेस्ट करते हैं कभी कभी, अगर सिम्टम्स दिखता है तो क्यों नहीं कर सकते ना, हमारा तो बंधा हुआ नहीं है, HbA1c कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं ना। यूजुअली करते हैं, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग है ना, स्क्रीनिंग करते हैं। अगर फिजिशियन को लगा कि हमको फिर से करना है कुछ इंटरवेंशन तो करेंगे। अगर सोनोग्राफी देख रहे हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो हम करेंगे इंटरवेंशन, देखेंगे शुगर देखने क्या है ना, RBS देख लेंगे, PBS फिर से देख लेंगे ना। यूजुअली नहीं होता है बट होता है, ये भी होता है, मगर मैक्सिमम चांस होता है 24 to 28 वीक्स में ना, इसलिए हम उसमें ज़्यादा करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस
सिर्फ हेडलाइंस लिख के रख दो, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, हेडलाइंस लिख के रख दो, ये मेडिसिन का पार्ट है। अगर कोई पेशेंट T2DM का डायग्नोस्ट हुआ तो उसको पहले बोलना है कि आप आंखों का डॉक्टर दिखाओ, पहला जॉब है। आप तो ट्रीटमेंट करोगे T2DM का, मगर आंखों का डॉक्टर तो मैंने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो आंख देखेगा ना, उसको भेजो, उसको रेफर करो उधर। टिकट में लिखना है एडवाइस विजिट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्यों? डायबिटिक रेटिनोपैथी, शी कैन लूज हर विजुअल साइट, शी और ही कैन गो ब्लाइंड। आपको भेजना है, वो आपका लीगल ऑब्लिगेशन में आ जाएगा। अगर नहीं लिखा, बाद में पेशेंट आके बोला सर ने तो नहीं बोला, तो मैं कैसे जाऊंगा, फंस जाओगे अपना। उसको भेजना है मैंने एस सुन, आज हो तो आज ही भेज दो, कल हो तो कल ही, मैंने एस सुन भेजना है, ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस जान के रखो ना, ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, आप ये और में पढ़ेंगे, मेडिसिन में होगा वो। सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज एमआई जैसे। फूड, डायबिटिक फूड हो सकता है, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। डायबिटिक फूड क्या है बच्चों? व्हाट इज डायबिटिक फूड? एनीवन? ये भी मेडिसिन का पार्ट है, फिर भी आप थोड़ा पढ़ के या थोड़ा हेडलाइंस लिख कर रख दीजिए। जैसे कि लाइफस्टाइल मोटिवेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड इफ द HbA1c इज लेस देन 7 यू कैन फॉलो द डैश, मींस द डाइटरी, लेस कार्बोहाइड्रेट, लेस स्वीट्स और फ्रूट्स, लिमिटेड अमाउंट लेना है, ठीक है ना। एक्सरसाइज कर सकते हैं 30 मिनट्स करके, वीक में 5 दिन आप रनिंग करो 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग फॉर 5 डेज। अगर 7 से ज़्यादा गया, अनकंट्रोल है 7 से ज़्यादा का HbA1c, तो आपको सोचना पड़ेगा मेडिकेशन के लिए, मीन्स मेडिकेशन के लिए। कैसे देख सकते हैं? मेटफॉर्मिन दे सकते हैं, ग्लिपिजाइड, पायोग्लिसराइड, डाफाग्लिपिजोन, सिटाग्लिप्टिन, नेकारबोस और इंसुलिन। ये आप मेडिसिन में अच्छे से पढ़ोगे। अभी सिर्फ नाम पढ़ के रख दो, फार्माकोलॉजी में ड्रग्स के बारे में और मेडिसिन में कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उस डोजिंग, ये सब। इंसुलिन भी यूज कर सकते हैं। और आपको ये भी देखना है कि हम मेडिकेशन जो दे रहे हैं या फिर डाइट जो दे रहे हैं, व्हाट आर यू गिविंग, लाइक मेडिकेशन और डाइट, व्हाट एवर इट इज इट कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर और नॉट? टू हैव टू मॉनिटर बाय रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, वी हैव टू डू द रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट पोस्टपैंडियल। और HbA1c भी कर सकते हैं 2-3 महीने के बाद। HbA1c रेगुलरली नहीं करते। हमने क्या बोला था पहले? पोस्टपैंडियल किस लिए यूज करते हैं? मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है ना। इधर लगेगा वो मॉनिटरिंग, आपको टाइट्रेट करना पड़ता है ना। सो आपका ब्लड ग्लूकोज कितना तक होना चाहिए डायबिटीज के बाद? पोस्टपैंडियल कितना होना चाहिए? व्हाट इज द कट ऑफ रेंज फॉर द पोस्टपैंडियल ब्लड शुगर फॉर अ डायबिटिक पेशेंट आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन और व्हाट एवर इज टेकिंग फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ T2DM? 180 के आसपास रहना चाहिए। 190 में भी चलेगा, 200 में भी चलेगा, 250 में नहीं चलेगा, 240 में नहीं चलेगा। मेडिकेशन बढ़ाना पड़ेगा या फिर डाइट को कंट्रोल और करना पड़ेगा, ठीक है ना। कम से भी नहीं होगा। अगर इसका आ गया 70, 40, 50, तब मेडिकेशन कम करना है, या फिर बोलना है थोड़ा ज़्यादा खाओ, एक फिक्स्ड अमाउंट खाओ। जैसे कि 1 किलो इधर दूंगा तो 1 किलो, तो इसके लिए एक मेजर होता है ना, बैलेंस बनाना पड़ेगा, उसके लिए टाइट्रेट करना पड़ेगा ना। टाइट्रेशन कैसे करेंगे? हम 2-3 दिन तक मेजर करेंगे, कैसे करेंगे कि ग्लूकोज कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, बाय डूइंग द पोस्टपैंडियल। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? कैसे कंट्रोल करेंगे बोलो? व्हाट विल डू टू चेक द बैलेंस ऑफ ग्लूकोज इज देयर और नॉट? 2 आवर्स बेटर। कट ऑफ मार्क क्या है? कितने के आसपास रहना चाहिए? व्हाट इज द कट ऑफ मार्क ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर पोस्टपैंडियल? मैंने मेडिकेशन लिया, मुझे तो कंट्रोल होना है ना कि मैं 100 आया तो मैं खुश हूँ, मेरा मेडिकेशन काम कर रहा है, या फिर 150, 200, 300, 200 नहीं 180 है, उसका आसपास रहना है, ठीक है ना। बेटो ऐसे नहीं होगा, यही पूछेंगे वो लोग। मेन है क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया में इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होगा, नॉर्मल कौन सा, HbA1c क्या है, क्यों बेस्ट है, वो बोलना है। छोटी छोटी चीज, ये तो बड़ा सब्जेक्ट है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर देना है। अभी नहीं बोलना, मैं पूछूंगा जब तब बोलना है। बेस्ट आंसर भी है, सेकंड बेस्ट आंसर भी है, थर्ड बेस्ट आंसर भी है सेमी क्वेश्चन में। इसका पहला आंसर तो होगा वो इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोनेओजेनेसिस ना। दूसरा आंसर बेस्ट क्या है? डिक्रीज पेरिफेरल अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स ना। तीसरा आंसर क्या होगा? ठीक है ना, 3 आंसर हुआ कि नहीं इसका। इसके बाद एक बेस्ट आंसर कौन सा है? पहले वाला।
वो पूछेगा नहीं, हम इधर वो नहीं पूछेंगे कि मेडिकेशन क्या है, वो क्या है। डायग्नोसिस पूछ सकते हैं, कैसे डायग्नोसिस होगा, या फिर इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस का क्राइटेरिया रेंज, और व्हाट आर द क्लासिकल सिम्टम्स व्हाई नॉट पॉलीफेशिया इज ए क्लासिकल सिम्टम। अब तो समझ में आ गया ना, व्हाई नॉट पॉलीफेशिया क्यों नहीं होता है, मेजर नहीं करते, सिंपल है। मॉनिटरिंग के लिए कौन सा करेंगे, पोस्टप्रांडियल, और बेस्ट कौन सा है, क्यों है, एक तो फटाफट से बने कभी भी कर सकते हैं, वो डिपेंड नहीं करता फास्टिंग या पोस्टप्रांडियल या फिर अभी खाना के नहीं हो। दूसरा तो क्या है, वो 3 महीने में का एवरेज देता है ना, ठीक।